In this video, we are going to start exercise 9.3 of circles chapter. This is exercise 9.3 and question number 1. Question number 1 is a very simple question. Draw different pairs of circles. We will draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? Firstly, we will draw different pairs of circles. Pairs of circles means we have a circle and then another circle. This one is a pair of two circles. Question is draw different pairs of circles. This one is one pair. Then one more pair. Now we have two different pairs. In the same way, we will draw another pair of circles. This one is another pair of circles. We have three different pairs of circles here. Question is, how many points does each pair have in common? So we can see here no point is common. यहाँ दोनों circles के बीच कोई भी common point नहीं है. We will write here no common point. यहाँ दोनों सर्कल्स के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है because दोनों सर्कल्स क्या है यहाँ पे दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है. इट मींस नो पेयर इज कॉमन बिटवीन द टू सर्कल्स हियर. देन यहाँ आप देखेंगे इस पॉइंट पे दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं. जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं इट मींस दैट वन इज द कॉमन पॉइंट. सो एक ही पॉइंट पे अगर टच कर रहे हैं वी कैन से वन कॉमन पॉइंट. हियर टू सर्कल्स हैव वन कॉमन पॉइंट. नाउ another pair of circles. आप देख रहे हैं यहाँ दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं, यहाँ दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं. इट मींस हियर वी हैव two common points. Two common points. एक बार फिर से क्वेश्चन इज ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स. तो हमने ये एक पेयर ड्रॉ किया, एक पेयर ये ड्रॉ किया और एक पेयर ये ड्रॉ किया. ड्रॉ कर दिए. देन हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? यहाँ दोनों सर्कल्स के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है बिकॉज टच ही नहीं कर रहे. सो हमने लिखा नो कॉमन पॉइंट. यहाँ दोनों सर्कल्स एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं. इट मींस टू सर्कल्स हैव वन कॉमन पॉइंट. यहाँ दोनों सर्कल्स दो अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं. सो वी हैव टू कॉमन पॉइंट्स. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या है? 2. जब भी आप दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम दो ही पॉइंट्स पे टच कर सकते हैं. दो से ज्यादा पॉइंट्स पे कभी भी दो सर्कल्स टच नहीं करते. सो आप लिखेंगे टू सर्कल्स कैन हैव what is the maximum number of common points? At most. At most means ज़्यादा से ज़्यादा, maximum. 2 common points. This one is our question number 1 of exercise 9.3. Chapter is circles. Now we will discuss question number 2. This one is very simple to understand. Now question number 2. Suppose you are given a circle. आपके पास एक सर्कल है. Give construction to find its center. अब इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री बॉक्स की रिक्वायरमेंट है. That's why जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए. ज्योमेट्रिकल टूल्स की हेल्प से ही आपने इस क्वेश्चन को फाइंड करना है. नाउ क्वेश्चन इज
suppose we have a circle. Question is you are given a circle. So हमारे पास क्या है, एक circle, but we don't know the center of circle. How can you find its center? आप इसका center कैसे find करेंगे? Give steps to find its center. तो मैं ऐसा करूँगा यहाँ पे steps to find center of circle. Now what are the steps? Firstly, whenever we have to find the center of circle, अब यहाँ पे आपने सर्कल जो है वो ज्योमेट्रिकल टूल्स की हेल्प से ही ड्रॉ करना है. ओके, सेंटर तो आपके सामने आ जाएगा, स्टिल आपको स्टेप्स लिखने उस सेंटर को फाइंड करने के. Now suppose this one is a circle. So first of all we will draw any two chords of the circle. कोई भी दो chords आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, कोई भी दो chords कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं. It makes no difference कि कहाँ से आपको chords ड्रॉ करने हैं. Suppose this one is called AB and this one is called CD. अब steps लिख रहे हैं तो यहाँ मेंशन करना है. फर्स्ट स्टेप क्या लिया हमने, draw two chords AB and CD of the circle. Draw, अब यहाँ मैं 2 की जगह लिखूंगा any two chords because we can draw infinite number of chords. So मैंने कोई दो chords यहाँ पे ड्रॉ किए, उनका नाम रखा AB and CD of the circle. This one is step 1. Now step 2. Now we will draw perpendicular bisectors of these two chords. दोनों chords के हम perpendicular bisectors draw करेंगे. How to draw the perpendicular bisector? अब ये आपको पता है. We have discussed constructions chapter in detail. हमने एक एक क्वेश्चन करके उसका डिस्कस किया. How to draw the perpendicular bisector of a line segment. जब भी perpendicular bisector ड्रॉ करना है, सपोज मैं AB का perpendicular bisector ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, A पे कंपास रखना है. कंपास को खोलना कितना होता है, AB से थोड़ा सा कम, या फिर ऐसे कहते हैं AB का जो हाफ होगा उस हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कंपास खोलना है. A पे कंपास रख के हमने एक और नीचे और एक और ऊपर, मतलब AB के दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड एक एक और ड्रॉ करना है. अब ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करेंगे. यहाँ पे ए पे कंपास रखा और कंपास का रेडियस कितना रखा, ए बी से थोड़ा सा कम, या फिर आप कह सकते हैं ए बी के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा. हमने एक और लेफ्ट साइड एक और राइट साइड ड्रॉ की. उसके बाद कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है, सेम रेडियस लेके बी पे कंपास रखना है, एक और लेफ्ट साइड एक और राइट साइड ड्रॉ करनी है हमें. वो दोनों आर्क्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. सपोज मैंने ए पे कंपास रखा, एक और इस साइड एक इस साइड. Let these be the arcs. Suppose ये दोनों आर्क्स ड्रॉ हुई. जब हमने ए पे कंपास रखा, एक और ऐसे एक और ऐसे, देन बी पे कंपास रखेंगे सेम रेडियस के साथ, एक और फिर दूसरी आर्क, दिस वन एंड दिस वन. ये दोनों आर्क्स ड्रॉ कर देंगे. इन द सेम वे जब CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, C पे कंपास रख के एक और ऊपर एक नीचे, और सेम रेडियस के साथ D पे एक और ऊपर एक नीचे. You know the steps to draw the perpendicular bisector. We have discussed in detail. C पे कंपास रख के भी ऊपर और नीचे हमने आर्क्स ड्रॉ की. एक बार फिर सुन लें. A पे कंपास रख के लेफ्ट साइड राइट साइड आर्क, सेम रेडियस के साथ B पे कंपास रख के लेफ्ट साइड राइट साइड आर्क, देन C पे कंपास रख के ऊपर नीचे एक आर्क, और सेम रेडियस के साथ D पे कंपास रख के ऊपर और नीचे एक आर्क. अब इन आर्क्स को ज्वाइन करेंगे जस्ट लाइक. उसके बाद इन आर्क्स को भी ज्वाइन करेंगे. पहले यहां स्टेप्स लिखते हैं. ड्रॉ, हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया AB का, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया CD का. इनके नाम रख लेते हैं यहाँ पे. इसका नाम PQ और इसका नाम LM. यहाँ पे ऑक्स इंटरसेक्ट कर रही है. PQ and CD, PQ and LM हमने ड्रॉ किए. नाउ व्हाट इज PQ? परपेंडिकुलर कॉमन डाल के
बाइसेक्टर्स ऑफ PQ और LM क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। PQ किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? AB का, AB, एंड LM किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? CD। PQ and LM that we will mention respectively. Respectively means PQ and LM. So PQ is the perpendicular bisector of AB, LM is the perpendicular bisector of CD. Draw the perpendicular bisectors. अब ये perpendicular bisectors क्या कर रहे हैं? ये मीट कर रहे हैं जाके एक पॉइंट पे, let it be O, यहाँ लिखेंगे respectively intersecting each other at O। एक बार फिर सुन लें। फर्स्टली हमने AB एंड CD टू कॉर्ड्स ड्रॉ किए, कोई भी दो कॉर्ड्स कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन PQ और LM ड्रॉ किए। व्हाट आर PQ एंड LM? दीज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड CD। मतलब फर्स्टली दो कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं, उसके बाद उन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। अब जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम रखा O, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस वन इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस O is the required center of circle. This is how to find the center of a circle. We are given a circle but its center is not given. जब center नहीं है हमारे पास तो center find करने के लिए these are the steps, and this is your question number 2 of exercise 9.3. chapter is circles. Now we will discuss question number 3. एक बात का ध्यान रखना है, आपको ये सारे के सारे steps ज्योमेट्रिकल टूल्स की हेल्प से लेने हैं। आपको कंपास की हेल्प से ही सर्कल ड्रॉ करना है। Next is question number 3. Same exercise. What is question number 3? We have, if two circles intersect at 2 points. If two circles intersect at 2 points. Draw करेंगे firstly. We will draw two circles. One circle. If two circles intersect at 2 points, their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. This one is another circle. Two circles. Center of circle, then center of circle. दोनों circles का अपना अपना center. So suppose O, let it be O dash. These are the centers of two circles. Two circles intersect at 2 points. अब जिन points पे circles intersect कर रहे हैं, suppose this one is P point and this one is Q point. Question is, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. Center lies on the perpendicular bisector of the common chord. आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, suppose ये सर्कल हमने यहां ड्रॉ किया, this one is second one circle, chord and chord. PQ is the chord. Okay, this one is PQ. मैंने इन दोनों सर्कल्स को अलग अलग करके रिप्रेजेंट किया। Here center of circle is O, here center of circle is O dash. Okay, अब आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है PQ वाला पोर्शन, ये इस सर्कल में भी है, इस सर्कल में भी है।
Here PQ is the chord. अगर PQ chord है तो chord किस सर्कल में है? ये chord दोनों सर्कल्स में है. It means this one is common chord. आपको क्या प्रूव करना है? Prove that their center lies on the perpendicular bisector of common chord. हमें प्रूव करना है center of circle lies on the perpendicular bisector of common chord. मतलब ये जो लाइन सेगमेंट, अब हमारे दोनों सर्कल्स के सेंटर इसी लाइन सेगमेंट पे फॉल कर रहे हैं ऐसे, और हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, कौन सा लाइन सेगमेंट? ओ ओ डैश, दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड. क्या प्रूव करना है? ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड. यहां लिखेंगे टू प्रूव. हमें प्रूव करना है ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मीनिंग हुआ? ओ ओ डैश परपेंडिकुलर टू पी क्यू, या फिर ऐसा लिखें ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू. और इसी को हम थोड़ा सिंपल करके लिखेंगे. सिंपल करके लिखने का मतलब हुआ हमें प्रूव करना है ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. मतलब वी हैव दीज फोर एंगल्स. हमें प्रूव करना है इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री. जब कोई एक 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा तो सारे के सारे 90 डिग्री होंगे. इट मींस ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. तो इसको सिंपल करके लिख रहा हूं ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. यहां से तो परपेंडिकुलर हो जाएगा. बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि ये ओ ओ डैश पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूं एम. हमें प्रूव करना है पी क्यू के ये जो दो पार्ट्स हो रहे हैं, दीज टू पार्ट्स आर इक्वल. आज दोनों पार्ट्स मतलब पी एम इज इक्वल टू क्यू एल. अब आप इस लैंग्वेज में लिखेंगे, इस लैंग्वेज में लिखें, बोथ आर सेम थिंग्स. कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी हमें. लेट अस ज्वाइन ओपी. डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर रहा हूं. कंस्ट्रक्शन है ओ क्यू, देन ओ डैश पी एंड ओ डैश क्यू. इन सबको हमने ज्वाइन किया. ये मैंने सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया ताकि ये पता चल जाए कि पी क्यू इज कॉर्ड इन दिस सर्कल, पी क्यू इज कॉर्ड इन दिस सर्कल. इट मीन्स पी क्यू इज द कॉमन कॉर्ड. ओके, क्या लिए कंस्ट्रक्शंस? ज्वाइन ओपी, ओ क्यू, ओ डैश पी एंड ओ डैश क्यू. कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं. नाउ प्रूफ. How to prove this concept? Firstly, हम ऐसा करेंगे. We have this triangle P O O dash. मैं यहां ड्रॉ करूंगा. This one P O O dash, and then another triangle Q O O dash. यहां ड्रॉ करेंगे. Q O O dash. We will try to prove that these two triangles are congruent. Now how to prove? इन दोनों triangles को congruent करने के लिए you can see in this triangle we have OP and in this triangle we have OQ. Now what is OP and what is OQ? अगर ये circle है, in this circle O is the center and OP center to the boundary of the circle. This one is radius. Again center to boundary of circle. This one is radius. एक ही सर्कल की रेडियस
these two are equal. ठीक है, एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस हम ड्रॉ कर लेंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे. So OP is equal to OQ. These are radii of the same circle, and in the same way we have O dash P and O dash Q. These are radii of the same circle. एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, center to the boundary, center to the boundary. So ये भी रेडियस हुए, so ये दोनों भी इक्वल होंगे. O dash P and O dash Q. These two are equal. Then we have O dash, we have O dash. ये जो लाइन है, ये साइड, this one is common to both the triangles. So जब three parts हमारे equal हो जाएंगे, we can say these two triangles are congruent. उसके बाद के steps बाद में देखेंगे. Firstly, यही दो triangles in triangle POO dash and triangle QOO dash. Here OP is equal to OQ. OP is equal to OQ. Reason? Radii of the same circle. Okay. Then O dash P is equal to O dash Q. Same reason. Third part, O dash, दोनों triangles में congruent. दोनों triangles में common to both the circles. Now three corresponding parts of one triangle are equal to three corresponding parts of second triangle. So ये जो side हमने common word use किया, this one is common to both the triangles. Okay. Therefore, triangle POO dash is equal to, congruent to triangle QOO dash. Reason? All the three are sides by S congruency. Now when two triangles are congruent, आप देखेंगे we have this one. O dash P is equal to O dash Q. ऐसा भी हमने लिया, O dash P और O dash Q इक्वल है. So O dash P के सामने ये एंगल और O dash Q के सामने ये एंगल. When two triangles are congruent, तो हम कह सकते हैं these angles are equal. These are corresponding parts of congruent triangles. Okay, ऐसा हो जाएगा हमारे पास. यहां से लिखेंगे इस एंगल का नाम POO डैश. आप यहां देख रहे हैं POO डैश. POO डैश इज इक्वल टू इस एंगल का नाम QOO डैश. QOO डैश. Corresponding parts of congruent triangles. अब एक चीज को और ध्यान दें आप, POO डैश, यहां से POO डैश, दिस वन इज OO डैश. रास्ते में एक पॉइंट है, यहां पे भी हम कॉल कर रहे हैं, ये पॉइंट M, ये पॉइंट M. POO डैश. अब O से O डैश को मैं कट करके POM लिख रहा हूं. यहां से मैं QOO डैश नहीं लिख रहा हूं, QOM लिख रहा हूं, बिकॉज रास्ते में ही M कॉल कर रहा है. इसी को मैं लिख लूं और POM, angle POM is equal to angle QOM. These are the same things. POO dash लिखें या POM लिखें. Likewise, ये angle भी हमने ऐसे ही किया. Now, next step in the question. इसको भी इरेज कर रहा हूं यहां से. अब हम ऐसा करेंगे, we have this one, triangle POM, triangle POM, and then triangle QOM. ये भी ड्रॉ करेंगे यहां पे. QOM. We have two triangles. Okay. POM, QOM. आप देख रहे हैं what is OP? ये OP. This one is radius.
and OQ. This one is radius. ये दोनों एक ही सर्कल में हैं, दोनों रेडियस. So we can say यहां से हमारे पास QOM, थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे. This one is like this. QOM. Now we have OP and OQ equal. ये दोनों इक्वल हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. देन अभी हमने प्रूव किया एंगल POM इज इक्वल टू एंगल QOM. ये दोनों भी इक्वल हैं, प्रूव किया अभी हमने. सो दो पार्ट इक्वल हो जाएंगे. देन OM एंड OM. OM इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स. सो थ्री पार्ट्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे. दोनों ट्रायंगल्स के थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ये स्टेप लेंगे. इन ट्रायंगल विच वन POM and triangle QOM, we have OP is equal to OQ. Reason, radii of same circle. Then next one, this one angle POM is equal to angle QOM. अभी हमने किया यहां से, और रीजन क्या लिखेंगे, प्रूव किया हमने, प्रूव्ड. देन OM is common to both the triangles. OM is equal to OL, common. Therefore triangle POM is congruent to triangle QOM. What's the reason of congruency? आप देख रहे हैं, this one is side, this one is side, दोनों sides के बीच एक एंगल है. So side angle side by SAS congruency. Okay, by SAS congruency these two triangles are congruent. जब ये दोनों triangles congruent, आप देख रहे हैं these two angles are equal. जब ये दोनों angles equal हैं, so इस एंगल के सामने PM और यहां से इस एंगल के सामने QM, हमें PM और QM इक्वल प्रूव करना था, वो यहीं से प्रूव हो जाएगा. लिखेंगे यहां से PM is equal to QM and एक पार्ट बोल लेंगे यहां से, यहीं से आप देख रहे हैं OP and OQ are equal. So OP के सामने ये एंगल और OQ, दिस वन OP और OQ इक्वल थे, OQ के सामने ये एंगल, मतलब एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OMQ. एंगल OMP OMQ, ये दो एंगल्स इक्वल और ये दो साइड्स इक्वल. दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बिकॉज़ बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ना जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके इक्वल हो जाएंगे. आल्सो वन मोर कॉन्सेप्ट हियर. वो कॉन्सेप्ट क्या है? दिस वन, वी हैव PQ, ये PQ, और इसी PQ पे M पॉइंट. जब M पॉइंट है, so this complete angle is equal to 180 डिग्री. इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा. यहां से OM ड्रॉ किया हमने, OM. Now we can say these two angles, sum of these two angles is 180 degree. We have discussed the concept of linear pair. Sum of these two angles is 180 degree. इन दोनों एंगल्स का नाम क्या है? OMP OMQ. दोनों का सम कितना होगा? एंगल OMP plus angle OMQ is equal to 180 degree. The reason is linear pair of angles. Sum of these two angles is 180 degree, but these two angles are equal. अभी हमने प्रूव किया दोनों एंगल्स इक्वल हैं. जब दोनों इक्वल हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है, इट मींस एंगल OMP is equal to एंगल OMQ. सो दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री हो जाएंगे? अपॉन 2 करके, एक भी 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री. बोथ एंगल, ये भी 90, ये भी 90. इट मींस यहां से रिजल्ट क्या निकला? यहां से रिजल्ट ये निकल रहा है कि OO'
is perpendicular to PQ. Therefore, O dash is perpendicular to PQ. आप ऐसा लिख सकते हैं O dash is perpendicular to PQ. हमें दो रिजल्ट्स प्रूव करने थे. O dash perpendicular to PQ हमने प्रूव किया. Then PM is equal to QM. PM is equal to QM. ये भी हमने यहाँ पे प्रूव किया. So इसको यहाँ से हम बॉक्स में बंद कर लेंगे. डिस्प्ले हो रहा है. Okay. Now at the end you can also write the result in this form. Hence आप लिख सकते हैं hence O dash is the perpendicular bisector of PQ. Hence the result is proved. So this is question number 3, and with this question exercise 9.3 of circles chapter is complete. Thank you.